Hello guys, my name is Dr. Deepak Anjana. In today's video, we are with us Dr. Ravi. He's currently doing his internship from Delhi. So हम आज जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस क्या है अभी तक दिल्ली में इंटर्नशिप करने का और एंड व्हाट इज द प्रोसेस फॉर डूइंग इंटर्नशिप इन दिल्ली because very complicated process of internship and all things in Delhi there are many procedures we have to follow. We have to do interviews, we have to attend interviews and something like that. सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सारा चीजें डिस्कशन. सो थैंक यू सो मच रवि भाई ज्वाइन करने के लिए और प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताएं. Hello everyone, my name is Dr. Ravi Rawat and currently I'm doing my internship in Delhi from Maulana Azad Medical College and Associated Hospital. Or thank you so much Deepak Bhai for inviting me and having me here. So thank you so much Ravi bhai, and can you please tell us about your MBBS college also and what about your FMG exam also? I graduated from Uzhgorod National University, Ukraine in 2021 June and उसके बाद मैंने FMG दिसंबर 2021 में FMG पास किया और उसके बाद अभी करंटली मेरा इंटर्नशिप चल रहा है. थोड़ा सा डिले हो गया बट yes finally it has started. Okay. So actually applied for internship in Delhi. So what was the exact reason behind it? Why Delhi? Yeah, actually, whenever we think about internship, like 70% of the students they will think of Delhi only because they we all have that perception. Yeah, Delhi has good clinical exposure, and to some extent I feel that is true also. क्योंकि जो दिल्ली में हॉस्पिटल्स हैं वो स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वहाँ पे पूरे इंडिया से पेशेंट आते हैं. पूरे इंडिया से पेशेंट आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास आपको केसेस देखने को मिलेंगे. क्लिनिकल एक्सपोजर रियली गुड. यस, और वो ही एक रीजन था कि मेरा भी एक रीजन था कि क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा प्लस फिजिकली मैं वहीं के वहीं अगर टाइम मिला तो मैं कोचिंग स्टार्ट कर सकता हूँ. ये एक रीजन था उसकी वजह से मैंने दिल्ली चूज किया. ठीक है. So in today's video, we will first discuss about the internship procedure, and in later part, we will ask about his FMG struggle and FMG journey. So, what is the exact procedure to start internship in Delhi? Like just after we are passing FMG and after we are getting the pass certificate, then what procedure we have to follow? Actually, nowadays for FMG, everything has become very complicated. Earlier it used to happen like you passed your FMG, you collected your passing certificate, just go to hospital and college, you get your NOC from there, and you start your internship. But now things has changed completely. When I started after I passed FMG, they start to have interviews in New Delhi. Like you have to apply for interview. Then if you cleared the interview, you will get selected for the internship. And after like 4 or 5 months of my passing, they have changed it completely. Now the DMC, Delhi Medical Council or NMC is giving a list of hospital, like HMC also giving list of hospital. These are the hospital, how many seats are available there, and you have to apply in DMC, Delhi Medical Council. They will allot you the medical college. So अभी पहले ये होता था कि just pass your FMG, score doesn't matter. Now score matters for your internship. You will get preference you will get your medical college of choice according to your marks only. So I got it according to my merit list. Okay. तो मतलब FMG क्लियर करना है. FMG करने के बाद पास सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको DMC में अप्लाई करना है और DMC फिर कॉलेज अलॉट करेगी. तो उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है कि वो कैसे अप्लाई करना है? यस, तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल हर एक कॉलेज की सीट अलॉटेड करके देगा कि इसमें इतना कॉलेज, इसमें इतने सीट्स अवेलेबल है, इसमें इतने एफएमजी के लिए अवेलेबल है. और आपको ऑनलाइन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपको परफॉर्मा आपको डीएमसी में देना है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल में उसका ये देना कि मेरी ये चॉइस है, ये मेडिकल कॉलेज में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ. फिर उसके बाद में वो मेरिट लिस्ट निकालते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग कि जिसके मार्क्स ये हैं इनको ये कॉलेज अलॉट हुआ, इसको ये कॉलेज अलॉट हुआ, इसको ये कॉलेज अलॉट हुआ, और फिर आपको आगे की अपनी ज्वाइनिंग करनी. ओके. तो ये जो प्रोसेस है डीएमसी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है अपने को. जैसे बेसिकली हुआ क्या था कि जैसे हरियाणा
और पंजाब में साइट पे आपको ऑनलाइन है, और यहाँ पे ऑफलाइन परफॉर्म आया था, उन्होंने मेल पे परफॉर्मा भेजा था, वो परफॉर्मा आपको फिल करके आपको वहाँ डीएमसी में जमा करना है, और उसके हिसाब से वो फिर वो मेरिट लिस्ट निकालते हैं। बट बाकी जैसे हरियाणा मेडिकल काउंसिल और पंजाब मेडिकल काउंसिल में ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, सेम प्रोसीजर हो गया। ओके। मतलब 3 स्टेट तो ऐसी हैं जहाँ, इवन गुजरात में भी ऐसा हुआ है कि आपका उन्होंने सेम प्रोसीजर कर दिया, उन्होंने लिस्ट दी मेडिकल कॉलेज की, बट ये है कि उस लिस्ट में आपको मार्क्स के अलावा अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट के डोमिसाइल है, या like domiciles will be given preferences ओके। always. So in Delhi it happened, 70 seats were available, and around 50 to 60% of the seats were allotted to students from Delhi itself and non-domicile उसके बाद। ओके। Yes. सो ये अप्लाई करने का Yes. कोई फीस वगैरह नहीं है? नहीं नहीं, उसका अप्लाई करने का कोई ऐसा फीस नहीं, सब ओके। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। और यस। अब जैसे ये अप्लाई हुआ, अब फॉर एग्जांपल तो जो इंटरव्यू, अब इसके बाद क्या वो, मतलब वो इंटरव्यू प्रोसेस खत्म हो गया कॉलेज वाला में, जो इंटर्नशिप इंटरव्यू वगैरह होते थे? अभी जो आपको डीएमसी के अकॉर्डिंग आपको सीट्स अलॉट हो रहे हैं, उसमें कोई आपको इंटरव्यू नहीं देना, वो आपका आपके मार्क्स आपका इंटरव्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है। उससे उससे पहले ये क्या था, उससे पहले ये था कि आपको हर एक हॉस्पिटल अपने इंटरव्यू की डेट निकालता है, ठीक हम्म। है, उसमें आपको इंटरव्यू देना है, एंड इफ यू विल गेट सिलेक्टेड यू विल ज्वाइन देयर। ओके। बट उसमें क्या होता था, उसमें आपको पता है कि हाँ। कोई यहाँ पे इंटरनल मैटर में किसी की अप्रोच हुआ, अप्रोच वगैरह, तो वो सिस्टम हाँ, एकदम खत्म हो गया है, दैट इज अ गुड थिंग ऑल्सो। ठीक है। सो आफ्टर, जैसे फिर हमको होगा, जैसे हमने वो डीएमसी की वेबसाइट पे जाके वो सारी चीजें और जो भी अलॉट हुआ हमको कॉलेज वगैरह, अब आफ्टर दैट कॉलेज अलॉटेड, देन उसके बाद हमको क्या प्रोसेस करना है? उसके बाद कुछ नहीं, आपको बस जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देने, यू हैव टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स एंड दे विल गिव यू कंप्लीट स्केड्यूल ऑफ 1 year, that in this department you will start, after that this department. The process is simple, there is no fees after that. ओके। There is no fees in my at least in my college and hospital, there is no fees at all, and just simply document देने और आपको internship start करनी। सो ओके। उसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो पहले यस। जैसे होता था कि दिल्ली में पहले प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना पड़ता, तो वो प्रोविजनल का इशू खत्म हो गया कि बाद में करना है अप्लाई, क्या सीन है? नो नो नो, प्रो डीएमसी तो आपको, डीएमसी रजिस्ट्रेशन तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। डीएमसी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में आपको डीएमसी के अलावा, डीएमसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो आपका अलग चीज है, ठीक है, हाँ, वो तो आपको होना ही होना तो चाहिए, अगर आपको वही, दिल्ली में मतलब इंटर्नशिप करना अपन है वो तो जैसे होना ही चाहिए। उसके प्रोसीजर अलावा स्टार्ट, आपको एक और वो परफॉर्मा देते हैं जो। हाँ, तो जो अपन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं वो हाँ प्रोसेस स्टार्ट पहले डीएमसी के प्रोविजनल सर्टिफिकेट से होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, पहले आपको प्रोविजनल लेना पड़ेगा, जब आपके पास प्रोविजनल है तो आपको डीएमसी के लिए, कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। ओके। वो डीएमसी का जो प्रोविजनल है वो अलग चीज है, वो तो बेसिक चीज है, वो तो होना ही अच्छा, होना चाहिए आपको। ठीक है। तो वो डीएमसी का जो प्रोविजनल है वो उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, उसकी क्या प्रोसेस और फीस है? यस। उसकी प्रोसेस ये 8,000 का 8,000 के आसपास इसके पैसे लगते हैं, और सिंपल प्रोसेस है, वो आपका एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट पूछते हैं, 10th-12th मार्कशीट पूछते हैं, ठीक है। जैसे प्रोविजनल जो डीएमसी का जो प्रोविजनल था, वो सारे बाकी स्टेट्स में होता है, वो सेम ही प्रोसेस है सबका, प्रोविजनल का सबका ठीक सेम। है। और ये है कि यहाँ पे प्रोविजनल बड़ा जल्दी आ जाता है, 10 to 15 days में आपको प्रोविजनल मिल जाता ओके, ठीक है। सो डीएमसी प्रोविजनल हो गया, फिर उस प्रोविजनल लेने के बाद, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे लोग डीएमसी का प्रोविजनल लेके बैठे हैं, सो नाउ है। दे हाँ हैव हाँ टू सर्च फॉर वैकेंसीज, कि जहां भी वैकेंसीज कितनी है कॉलेज में, और वो सारी अब उनको मिलेगी हाँ। डीएमसी की वेबसाइट पे। यस, डीएमसी ही अलॉट करेगा कि अभी इस वाले कॉलेज में, जैसे इस बार का स्लॉट निकल चुका, अब जो हाँ। नया एफएमजी का स्लॉट आएगा, तो वो नया एफएमजी के बच्चे होंगे, उनको प्रोविजनल लेना है पहले, प्रोविजनल ओके। लेने के बाद में डीएमसी बताएगी कि इस वाले कॉलेज में इतने सीट्स खाली तो है, ये इसमें आई इतने थिंक अब सीट्स है, 6 मंथ के एंड यू हैव बाद। टू गिव प्रेफरेंस। यस, ऑलमोस्ट लाइक नाउ इंटर्नशिप विल बी इन एवरी 4 to 6 months। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी पासिंग सर्टिफिकेट मिला और आप ज्वाइन कर लोगे जाके। सो 4 to 6, मतलब तो अब हर 6 मंथ में वैकेंसीज आई है ना? हाँ, और टोटल दिल्ली में ऑलमोस्ट। अप्रोक्स कितनी है वैकेंसीज हो जाती है? अभी देखो जैसे आरएमएल का पहले हो गया था, आरएमएल ने पुराने प्रोसेस के थ्रू बच्चे लिए थे, अभी हाँ। जो न्यू प्रोसेस है उसके हिसाब से 70 सीट्स अलॉट हुई है, जो अच्छा, जिसमें मेरा नंबर आया है, ठीक है। उसमें 70 सीट्स अलॉट हुई है। तो अभी दोबारा से अगर जैसे आरएमएल भी इंक्लूड हो जाएगा तो ऑलमोस्ट दिल्ली में 200 के आसपास, 200 और 250 के आसपास के सीट्स होंगे दिल्ली में। ओके। और और ये व्हाट नया अबाउट, सेशन व्हाट आएगा अबाउट उसमें। प्राइवेट कॉलेजेस, अबाउट प्राइवेट प्राइवेट? कॉलेज में ऐसा है कि एवरी या एवरी हॉस्पिटल
has to have medical college if they want to start an internship. That is a simple rule. बहुत सारे बच्चे ऐसे कर करके बैठे हैं जो प्राइवेट में भी थे, इवन जो बहुत सारे बच्चे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करके बैठे हैं, ठीक है, जैसे सिविल हॉस्पिटल्स हुए, बट उनके पास मेडिकल कॉलेज नहीं था. दैट इज एन इश्यू कि एनएमसी, नाउ एनएमसी इज रेजिंग एन इश्यू कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू permanent certificates and all if you are not, if you have not done your internship from medical college मेडिकल associated कॉलेज। hospitals. ओके, Yeah, तो yeah. मतलब उसके हिसाब से अब जो अप्रोक्स सीटें तो बहुत कम हो गई हिसाब से अगर देखा जाए तो। सीट्स बहुत कम हो गई, सीट्स 200 बहुत, सीट भी दैट अगर इज हो एन जाती इश्यू. तो 200 सीट इसी तो की वजह से नहीं है। इतना ज्यादा आपको 200 सीट कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे अभी फॉर एवरी सीट इन दिल्ली almost 10 to 12 students are applying for one हाँ, seat in internship के लिए इतना हासिल हो गया है. वही तो बात है ना। और आप इसमें स्टाइपेंड वगैरह का क्या सीन है? स्टाइपेंड का ऐसा है कि when we joined the medical college, we asked them about stipend, and they knew already that NMC has uh, सेट टू circulated the new rule to give, yeah, yeah, but they behaved like no, 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 we don't know about it, and then we visited them again and again, and they asked us to write an application, and we will talk about it, and we will give you मतलब टिल नाउ दे stipend आर वगैरह नॉट गिविंग, like, बट मे बी इन फ्यूचर दे मे yeah, माइट बी गिव। yeah, yeah. Because they knew that NMC has given them order of paying So like fees, or even the situation is government medical colleges same do in all this. medical college in Delhi, right? Yeah, yeah, No yeah. one is giving जो stipend till now. अभी हमारा जो नया बैच आया है, उसमें सब में किसी में भी आपको भी स्टाइपेंड नहीं मिल रही है, बट पुराने वाले में स्टाइपेंड भी के लिए जो प्रोसेस में, पुराने वालों में भी नहीं, पुराने वाले में पुराने, भी किसी में भी और आई थिंक टिल नहीं नाउ स्टाइपेंड ओनली सिर्फ. राजस्थान ओनली हाँ, स्टार्टेड। या आई गेस एमपी में भी इस बार स्टार्ट कर दिया गया. अच्छा, राजस्थान का तो कम है, मेरे ख्याल हाँ राजस्थान में स्टाइपेंड स्टार्ट हो हाँ, गया. कुछ कुछ जगह दिल्ली में ऑन द स्टार्ट। वे है. हाँ, ठीक, मतलब हो ही जाएगा और लगभग अगर देखा होपफुली, जाए तो। यस, ठीक, होपफुली लग रहा है कि हो हो जाएगा स्टार्ट. जाना चाहिए, वही चीज है। और अप्रोच हो हाँ. गया तो अप्रोच कितने मिलेंगे मंथली? अभी जैसे मेरे साथ में जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है सेम मेडिकल कॉलेज के, उनको 25,300 मिली. तो किसी अच्छा, को 20, मतलब एवरेज रेंज है ये 23 टू ओके, 27 के बीच के रेंज ठीक है. है। तो अगर होता है तो एंड ऐसे, दैट विल बी गुड अमाउंट फॉर हाँ, इंटर्न्स. काफी या, सही है वो तो चीज है, या, बिल्कुल सही बात है। सो अगर प्रोसेस को हम पूरा एक समराइज अगर करें, तो प्रोसेस ये है कि आप पास सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको डीएमसी में प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना है। डीएमसी की वेबसाइट पे जाके 8,000 के आसपास फीस पे करना है। और जो डॉक्यूमेंटेशन आपके ठीक है. बेसिक पासपोर्ट, वीजा एंड भी बाकी आपके पास सर्टिफिकेट 10 12 और ये सब चीजें वहाँ पे करना है। और उसके बाद फिर आपको देखना है कि कब वैकेंसीज आती हैं। हम्म. जब भी वैकेंसी आती है तो आपको वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए कोई फीस वगैरह, उसके बाद जो भी फीस पे करना है बस वो 8,000 फीस पे करना थी, बस वही थी, उसके बाद कोई फीस नहीं है कहीं पे भी, है ना। और ये चीजें खत्म होने के बाद यस, जैसे होती है, जैसे आपको यस, कॉलेज अलॉट हो जाता बिल्कुल. है, उसके बाद आपको उस कॉलेज, उसके बाद जो कॉलेज अलॉट होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन आपको मेडिकल काउंसिल में देना है और फिर कॉलेज में वापस देना है। नहीं नहीं, कॉलेज में देना. मेडिकल काउंसिल का हो गया आपका खत्म हाँ, जब आपको इंटर्नशिप अलॉट. हाँ, ठीक फिर है। आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट देना और असेंबली आपकी स्टार्ट हो. ओके, और कॉलेज में डॉक्यूमेंट दोगे, फिर कॉलेज वाले आपको पूरा एक 1 ईयर का आपको सर्कुलर बना के दे देंगे कि आपको ये आपको डिपार्टमेंट आपको हाँ, इंटर्नशिप करना है और सब सबको कंप्लीट करना है। तो ये वाला मेन सिस्टम था, वो चीजें। अब इसमें हाँ. और वैकेंसीज के भी कोई दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं इन्फॉर्मेशन आने के, कोई टेलीग्राम ग्रुप्स या फेसबुक ग्रुप्स इस टाइप से कुछ? यस, यस. बेसिकली आपको टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू ही इंटर्नशिप के जो है आपको स्लॉट्स भी पता लगता है कौन से स्टेट में क्या मेडिकल को आया है. और बाकी आपको डीएमसी के साइट पे तो आपको विजिट करना होता है, और और ऐसी चीजें तो बहुत अच्छे से सर्कुलेट होती हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं जो हर जगह. दिल्ली में रहते हैं तो उनको तो टेलीग्राम पता ग्रुप्स है। पे वो 2-3 ग्रुप हैं, तो वहाँ पे आ जाती है इन्फॉर्मेशन उससे ओके, रिलेटेड. ठीक है, प्लीज प्रोवाइड अस दोस लिंक्स, हम वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि अगर लोगों को कुछ, अगर कुछ नए होंगे तो वो उसमें ज्वाइन कर ओके, लेंगे अगर ठीक है, कुछ टाइप से बिल्कुल पूछना बिल्कुल. तो। ठीक है। श्योर, So, ठीक. now till now we have finished the procedure of the internship. So अभी आपको ज्वाइन आपने रिसेंटली किया है, तो इतने दिन आपका जो अभी मेडिसिन में पोस्टिंग वगैरह चल रही है, अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या एक्सपोजर है, और बाकी लोगों का क्या बिहेवियर है आपके टुवर्ड एफएमजीज को लेके और सारी चीजें? Yes, this is something I really want to talk about. Uh, until the time I joined internship, I used to see the description only on social media basically, and in relatives, जो कि आपके फेस पे नहीं बोलेंगे, but there was some description, and we all know every FMG has felt this
here and there कि हम्म, हाँ कुछ तो है कि बाहर डिस्क्रिमिनेशन वाला है, बाहर वाला है, हम्म, ठीक है. And the same thing I felt in the real life also in medicos. Uh, the first day of my reporting in Maulana Azad Medical College, the first day I went to medicine department and I introduced them my कि मैं FMG हूँ, मुझे अभी internship start होगी, and they gave my posting in CCU, critical care unit, and I went there, and there was a first year PG, and I told him that I'm an intern and I have joined here, and he said intern, and I said FMG, and he said, why are you calling yourself intern? Seriously, like he said, you are an extern, you are not an एक्सटर्नल intern. तो फिर बोला, मैंने बोला चलो सर हाँ मैं extern हूँ. तो and the reaction, his reaction was saying like it all, and he was behaving like गवर्नमेंट क्या करेगी, और मतलब FMG यहाँ तक आ गई कि मौलाना आजाद दे आर मेडिकल नॉट कॉलेज के अंदर तक आ एक्सेप्टिंग गई. लाइक द फैक्ट दैट Yes, FMG they are हैव not रिलेशनशिप विद accepting the मौलाना fact कि यस. और फिर उन्होंने बोला कि पास में एक और वहां पे डॉक्टर बैठे थे, उन्होंने बोला कि एक्सटर्न्स यहाँ तक आ चुके, ठीक है. एंड ही वाज रियली नाइस गाय, एंड ही सेड तो हमें क्या तकलीफ है उस चीज से, हम अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम करेंगे. एंड दैट वाज अ गुड थिंग. कुछ एंड लोग ही मिलते हैं, कुछ स्टार्टेड, लोग अच्छे होते हैं, यस, ज्यादातर अच्छे होते हैं, लाइक कुछ ही मिलते हैं ऐसे लोग. 95% लोग आपको अच्छे मिलेंगे, 5% लोग आपको ऐसे मिलेंगे ही वो जो तो सबके डिस्क्रिप्शन भी फ्रॉड होते करेंगे. हैं, तो वो कोई डिस्क्रिमिनेशन होता ही, वो थोड़ा, वो यस, तो सबके लिए, वो तो उनके बेचमेट के पति हो जाता है उनका, तो वो चीजें तो इतना कुछ बिल्कुल फर्क नहीं बिल्कुल पड़ता बिल्कुल है, वो चीजें. बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल. हाँ, तो तो ये डिस्क्रिप्शन टुवर्ड्स FMG इज ए रियल थिंग, दैट इज ए सीरियस. सही बात है. and and your description will depend more on how much you know. And हम्म, after 5 minutes he started to ask me, ग्लासगोमा स्कोर बताओ, राइल्स ट्यूब कैसे डालते हैं ये बताओ. And if you know something, they will become like flat, emotionless. हम्म, And he started to ask me, यूक्रेन में भी पढ़ाते हैं, यूक्रेन से पढ़े हो? यस, हम्म. लाइक ऑफ कोर्स हमारे बच्चों को They will प्रैक्टिकल judge, चीजें they नहीं will पता. judge you by your सिंपल, knowledge. Like knowledge is more yes, important. definitely they will judge you by your knowledge. And we all know that we do not have clinical exposure, हम्म. but हमने FMG पास किया, we know things. Yeah, हमें किताबों वाली चीजें तो हमें भी आती, ये बात ऐसी है. कोई बात नहीं. थ्योरेटिकल तो एंड होता ही दिस इज, होगा वो या, चीजें, वही मैं ज्यादा बिल्कुल जानता बिल्कुल. हूँ. सही बात है. या, तो और दिल्ली में अभी क्या इंटर्नशिप के साथ साथ जॉब का क्या सीन है, मिल जाती है इजीली या क्या सिस्टम है? जॉब का ऐसा है कि अगर आप टाइम मैनेज कर पाते हो, तो कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो कि आपको देते हैं, जॉब देते हैं. वो इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू कि ओके. आप कितना आप काम करना चाहते हो. बाकी ओके. इंटर्नशिप के साथ साथ आप जॉब कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे लोकम ड्यूटीज भी होती है, तो आप लोकम ड्यूटीज पे जा सकते हो, और एम्बुलेंस में आप जा सकते हो. तो हम्म. है, यहाँ पे कितना जॉब है कुछ पे इफ यू होता है वांट. आपको अप्रोक्स? पे का, हम्म. लोकम ड्यूटीज, हाँ हाँ. जैसे जैसे अगर आप एम्बुलेंस में जाते हैं यहाँ दिल्ली में, तो आपको एवरेज 6 आवर्स के जैसे मैंने 2-3 ड्यूटीज की है ऑलरेडी, तो 6 आवर के आपको 2400 रुपीज मिलते, 6 आवर्स के. छह ठीक है. घंटे के 2400 रुपये आपको काफी पे अच्छा है. पे मिल. हाँ, काफी अच्छा है. हम्म. बट वो है कि आपको हर जगह या मतलब श्योरिटी नहीं है इसमें. आपको कभी हम्म. जॉब आ भी गया, कभी नहीं भी आया, तो वो थोड़ा सा फिक्स अनसर्टेनिटी जॉब रहती है. नहीं बट है, उस टाइप की चीजें हैं, बट हाँ या, साथ साथ अगर आप चाहते हो तो आपका एटलीस्ट खर्चा डिपेंड ऑन योर इंटर्नशिप कि आपको इंटर्नशिप से कितना टाइम या, मिला, उस टाइप से ऑब्वियसली यस बात. यस, इफ यू आर बिल्कुल. हेक्टिक ड्यूटीज इन योर डिपार्टमेंट देन यू आर नॉट बी एबल टू जॉइन एनी लोकम और समथिंग या, लाइक. बिल्कुल सही बात है. या, तो ओके ठीक है, जैसे हमने अभी तक सारा इंटर्नशिप प्रोसीजर वगैरह सारी चीज डिस्कस करी. अब व्हाट वाज योर एफएमजी जर्नी लाइक? आपका भी एफएमजी में 200 प्लस आपने स्कोर किया था. सो कब से यस. आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और फिर ये एफएमजी के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? Like my FMG experience was full of like it was a roller coaster of emotions. कि आप एक दिन आपको फील हो रहा है that you are doing good, and second day you are feeling like you are not good enough, you are not doing well. So हम्म. I started preparing around, to be honest, 1.5 year before my exam. ओके. But I was preparing on and off. Last 6 months I prepared really well, ओके. and I prepared mostly from prep letter and few subjects from here and there. So it was kind of like FMG में ऐसा ही होता है कि आप श्योर नहीं हो पाते हो कि आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. बट all you have to do is to keep on studying, keep on improving, and you don't have to listen so many advices. Just आप follow करें कि हाँ मैं इस particular
इंसान से मैं सजेशन लेता हूँ, मुझे एक इसी ट्रैक पे चलना है, क्योंकि होता क्या है कि इफ 10,000 स्टूडेंट पास, इफ यू विल आस्क देम एडवाइस, दे विल गिव यू 10,000 एडवाइसेस, डिफरेंट 10,000 एडवाइसेस। तो आप दो तीन बंदों के आप सुनो और आप अपने हिसाब से प्लान करो। एफएमजी के लिए तो बेस्ट सजेशन यही ठीक है। सो जैसे है। आपने आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी 1 डेढ़ साल पहले, तो जब आपने आपकी डिग्री यस, खत्म करी तब तक आपने कितने सब्जेक्ट कर लिए थे जब आपकी डिग्री ग्रेजुएशन हुई? जब मैं यूक्रेन से आया तब ऑलमोस्ट मैंने 5 to 6 सब्जेक्ट्स तो रिवाइज कर लिए थे, और 13 सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि जो मैंने अपने हाथ से नोट्स लिखे थे। ठीक अच्छा। है, मैंने सारे नोट्स अपने ऑलमोस्ट 16 सब्जेक्ट्स के नोट्स मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, जैसे मेडिसिन जैसी सब्जेक्ट्स भी, हम्म। इवन सर्जरी मैंने अपने हाथ से लिखा है। कितने तो कितने मैंने पेजेस की हो 13 सब्जेक्ट्स गई का। थी हाँ, मेडिसिन सर्जरी कितने पेजेस की हो गई थी? मेडिसिन सर्जरी अभी लगाओ ऑलमोस्ट 600, इवन हम्म। मेडिसिन थोड़ा सा ज्यादा है, 600 के आसपास। इवन मेरे सारे नोट्स मैंने अपने हाथ से लिखे हैं। हाँ। और हालांकि आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि अगर आपके पास टाइम है तो अभी नोट्स लिखने के लिए नहीं बैठना, प्लीज वीडियो देख के, आपको 6 महीने पड़े हैं आपके पास तो आप नोट्स लिखने बैठो, नहीं नहीं, टाइम आई मोर वुड नॉट देन सजेस्ट अप्रोक्स यू। 2 ईयर और मोर देन टू अगर आपके ईयर पास, ओनली इट यस, पॉसिबल। यस, कम से कम अगर आपके पास 2 साल है, 1.5 से 2 साल है, तब आप ऐसी चीजें सोच ट्राई सकते करें। अभी हैं। ये टाइम नहीं है अगर आपको अभी एफएमजी देना सही बात। और फिर जैसे आपने ये जब इंडिया में आने के बाद फिर जो प्रिपरेशन चालू करी, सारी चीजें करी, तो फिर जैसे फिर आपके 200 प्लस जो स्कोर आया, तो उसके पीछे आपकी जो खास है। स्ट्रेटजी क्या थी? जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे 216 मार्क्स आएंगे, ठीक हाँ। है। और वन थिंग दैट वाज अबाउट माय सीनियर्स, they were someone, they were showing me path कि you know better than us and you will perform better. Highest score from my from my group was 208, एंड आई यूज टू थिंक यार नहीं नहीं, इतना तो, ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है 208 एफएमजी में। एंड दे गिव मी दैट, they told me one thing: do not listen to anybody, you you know that what is working for you, and just keep on working on that thing. डाउट्स आएंगे आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा, और पढ़ने का मन भी नहीं करेगा बहुत सारे। मतलब माई जर्नी, मतलब मैं एक टाइम पे, आपको ये 216 मार्क्स सुन के ऐसा लग रहा होगा कि इस बंदे ने कोई फेस प्रॉब्लम नहीं की, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इसको ये तो पहले से ही पढ़ने में अच्छा होगा। नो नो, आई वेंट थ्रू एवरीथिंग, आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, आई वेंट थ्रू सेल्फ डाउट, आई वेंट थ्रू द लो मार्क्स एंड गुड मार्क्स ऑल्सो। सो प्लीज, अगर आप इस फेज से निकल रहे हैं एफएमजी में, तो आप, ये सारा कुछ पार्ट है। आई एम श्योर कि आप डॉक्टर दीपक अंजना ने भी ये सब कुछ फील किया होगा। जो हर एक बच्चा जो एफएमजी पास करता है, यू हैव इट्स टू अ गो थ्रू प्रोसेस इट। ना, सो और ये, वेंट थ्रू दैट। यस, और इस जर्नी में आपको एक माइंडसेट ऑलरेडी रेडी करके रखना है कि दिस इज गोइंग टू बी टफेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ एंड आई एम गोइंग टू फेस दिस, एंड सही वो आपको उसी हिसाब से फेस करना है, ठीक है। बात एंड है। इट जर्नी विल बिकम इजियर वंस यू विल एक्सेप्ट दैट यस, इट इज गोइंग टू बी मोस्ट डिफिकल्ट सही बात है। टाइम ऑफ माय लाइफ। सही बात। यस। और लास्ट में कुछ आपका मैसेज अगर अपने जूनियर्स को लेके, या जो अभी एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस जनवरी के लिए, और जो आगे आने वाले हैं, और सारे जूनियर्स को अगर आप कुछ अपना मैसेज देना चाहते हैं तो? अभी देखो, जो करंटली एफएमजी का जो रिसेंट अटेम्प्ट आएगा, उनके लिए तो ये है सिंपल सजेशन कि आई नो आफ्टर पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम योर ट्रैक हैज बीन डाइवर्टेड ए लिटिल बिट, बट नाउ प्लीज यू हैव गुड इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, रिकलेक्ट योरसेल्फ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल। हम्म। अब यहाँ से दूसरा एफएमजी का अटेम्प्ट मिलना बहुत बहुत मुश्किल है, ठीक है, सही बात। ऑलमोस्ट नील है कि इसके बाद नेक्स्ट का होने वाला है। तो सही बात। आपको अगर इतनी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपका लास्ट एफएमजी अटेम्प्ट होने वाला है, ठीक है, तो आपको प्लीज उसी के हिसाब से प्रिपेयर करना है। आई नो बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं और बोलना चीजें आसान होती है, बट आपके पास भी कोई चॉइस नहीं है। अगर आपको इस यहाँ पे इंडिया में एज ए मेडिको सर्वाइव करना है, यू हैव टू एटलीस्ट क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। सही। कोई चॉइस नहीं है, आपको चाहे कितने भी पीछे वाले अटेम्प्ट में, आपको इस वाले अटेम्प्ट में, ये बाकी के 35 दिन या फिर 40 दिन का जो टाइम इंटरवल बचा है, उसमें ऐसे देना है कि दिस इज माई फर्स्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट। सही इसके बात। अलावा मुझे उससे पीछे वाले जो अटेम्प्ट हुए हैं, वो आपको एज एन एक्सपीरियंस आपको वो गेन करके आप उसको अप्लाई करना है। तो और प्लीज मेक श्योर कि आप वापस से ट्रैक पे आए और अ, अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है, ज्यादा सही। डाइवर्ट होने की बात नहीं। और जो बच्चे जिनका अभी थोड़ा टाइम है, जो बाहर हैं कहीं पे भी, अभी अगर आप अभी मेडिकल कॉलेज में हैं, तो आप प्लीज ऑलरेडी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले ही स्टार्ट करते, तो earlier you start better it is for you, because things will become difficult after you start to prepare, like even 6 months later than from here. सही So बात। start preparing. और बाकी ये है कि अगर एफएमजी पास करो,
एफएमजी के बाद जो जर्नी है वो ब्यूटीफुल है। हालांकि स्ट्रगल हर जगह होंगे आपके, सही बात है। but if you know something, you will be respected and you will be given सही बात। like a lot of priorities everywhere, ठीक है। और आप किसी से कम नहीं हो, कोई भी एफएमजी किसी से कम नहीं है। सही। अगर आपने एफएमजी क्लियर कर लिया है, यू आर गुड इनफ। लाइक मेडिकली, अगर मैं प्रैक्टिकल चीजों को छोड़ूं, तो अगर आपको बुक्स का नॉलेज है, यू आर इक्वल टू इंडियन, ऑलमोस्ट इक्वल टू इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। सही बात दैट है। इज द वन मैसेज आई क्लिनिकल रियलाइज, एक्सपीरियंस तो मैंने आप ये सीख खुद ही फील लोगे किया। 1 साल में। यस, एंड और एक साल बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है, वो आप सीख इंटर्नशिप ही में कर लेंगे। बस लोगे। आप मेक श्योर करो कि आपको जो पूरे पूरे मेडिकल जो अच्छे से किताबों का नॉलेज है वो आपको अच्छे से हो। सही ठीक बात, है। वही बात है। Yes. So thank you so much, Dr. Ravi, for joining us, and thank you so much, Unacademy, for giving us this opportunity to introduce Dr. Ravi. एंड होप ये वीडियो से सबको हेल्प मिली होगी, और भी बाकी आप लोगों के जो दिल्ली में इंटर्नशिप से रिलेटेड या एफएम रिलेटेड कुछ अगर डाउट्स होते हैं, सो आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। सो डॉक्टर रवि भी आपको वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जो भी दिल्ली से बिल्कुल इंटर्नशिप बिल्कुल। रिगार्डिंग भी। और एंड आल्सो आई विल शेयर डॉक्टर रवि लिंक इन द कमेंट सेक्शन। जो भी ये इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी ये लोग को गाइड करते हैं, आल्सो ऑन इज इंस्टाग्राम। सो अगर आपके कुछ और भी डाउट्स होते हैं, सो इनकी इंटर्नशिप की ड्यूटीज बड़ी एक्टिव होती है, तो प्लीज आप मैसेज करिए, बट थोड़ा सा वेट भी बिल्कुल। करिए, आप बिल्कुल ही विल रिस्पॉन्ड। सो थैंक यू सो मच यस। डॉक्टर रवि, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू, बाय, गुड।